First of all, today I'm going to start the syllabus of second term. First term has been completed and so many students have done well, but few students, they were unable to get good marks in the first term. And in final term, you know it very well, first plus second term दोनों मिलकर रिजल्ट बनता फाइनल. तो बच्चे आप सबको पता है कि इसके इतने अच्छे पेपर नहीं हुए थे, ठीक है ना? So in this term, try to get good marks, work hard from the very beginning so that you can get good marks in your PT3, and PT3 marks will be added in the second term. So final result, first term, second term, दोनों add होके बनता है. You know it very well. So try to get good marks in PT3, and for that you have to do hard work. Be regular from the very beginning. Attend your classes and daily revise what you have done in the class. Daily revise. In this way, you can get good marks in the coming term. So today I'm going to start with chapter of history, weavers, iron smelters, and factory owners. You know it very well as you have read in previous chapters also. Industrialization first came in Britain. England was the first country where industrialization came first. You know it very well. सबसे लेट मैं बताती हूँ रशिया में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सबसे पहले आया वो ब्रिटेन, ठीक है. फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेट अप इन ब्रिटेन दैट वाज cotton textile. Cotton textile was the first industry to be set up in Britain, and it was followed by iron and steel industry. First to iron industry, that was cotton textile. Cotton textile was followed by iron and steel industry, which means सबसे पहले जो industry आई that was cotton textile, and then iron and steel. Cotton textile. Due to cold climate, cotton की growth Britain में नहीं grew, and for cotton, Britain was totally dependent upon India. India was the colony of Britain, and British carried final variety of cotton from India to feed their industries. They came as traders. Later, they became rulers in India. In those days, India was known for its finer variety of cotton textile. Cotton textile की India की cotton textile थी ना जो that was of finer variety and had great demand in European markets. Rich people, aristocrats of Britain preferred Indian cotton textile. Earlier, they didn't prefer cotton textile of their own country. अपनी इंडस्ट्रीज, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज की कॉटन टेक्सटाइल को प्रेफर नहीं करते थे. They preferred Indian cotton textile because handmade थी, different designing थी, रिटेल की इंडस्ट्रियल मेड थी, सेम डिजाइनिंग होती थी. तो aristocrats they didn't prefer cotton textile of their own country. They preferred Indian cotton textile. So in those days, industrialists of Britain, they protested. They pressurized their government to put restrictions on Indian cotton textile. तो जो लॉस हो रहा था अपनी कंट्री में रह के अपने लोग कपड़ा नहीं खरीद रहे, उनकी अपनी इंग्लैंड के ही मैं रिच पीपल कह रही हूँ, वो इंडिया का क्लोथ प्रेफर करते थे क्योंकि इंडिया का हैंडमेड था, डिफरेंट डिजाइनिंग थी, बेटर फिनिशिंग टच था. वेयरएज ब्रिटेन का वो इंडस्ट्रियल मेड था, मिल मेड था, तो वो तो सेम डिजाइनिंग थी,
तो वो कहते होते थे ये वाला क्लोथ जो है ना मिल वाला, दैट वाज ओनली फॉर कॉलोनीज, पीपल ऑफ कॉलोनीज। ये कॉलोनीज के लोग जो है ना वो पुअर है, तो ये क्लोथ उनको बेचा जाए, तो इसलिए वो उसको प्रेफर नहीं करते थे, इंग्लैंड में भी तो इंडस्ट्रियल्स जो थे उनका क्लोथ अपनी कंट्री में नहीं बिकता। दैट्स व्हाई दे प्रोटेस्टेड, दे प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट to put restrictions on Indian cotton textile. अब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज लगाई। वीवर्स जो यहाँ से क्लोथ लेके ब्रिटेन जाते थे, earlier they earned huge profits. They could do bargaining because there in India 4 European powers थे। 4 यूरोपियन पावर्स आई थी तो उनके साथ वो बार्गेनिंग भी करते थे, जो हायर रेट पे करता था उसे बेचते थे। बट ब्रिटेन ने सबको एलिमिनेट भी किया। आपको मैंने ऐसे करके इस मिनट शायद नहीं बताया हुआ, किस वे से लर्न रखना ये बोलो। बाद में अब ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या इंग्लिश पीडीएफ बनाते हो ना, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, these European 4 European powers came to India। ठीक है, ये 4 European powers इंडिया है। लास्ट में आया ब्रिटिश, इंग्लैंड, ब्रिटिश इंग्लिश एक ही बात है। ब्रिटिश एलिमिनेटेड दैम, इनको एलिमिनेट किया, सबको भगा दिया मार्केट से, गार्ड्स इंग्लैंड में, ठीक है, सबको एलिमिनेट किया। एंड British established their monopoly over Indian trade। इंडियन ट्रेड पे सोल राइट किसका एस्टैब्लिश हो गया? ब्रिटिश। ये सब एलिमिनेट हो गए। तो 4 यूरोपियन पावर्स जब आई, वीवर्स कुड डू बार्गेनिंग विद दीज पावर्स, बट व्हेन ब्रिटिश एलिमिनेटेड दैम, जब ये एलिमिनेट हो गए तो ओनली किसके पास आ गई सोल राइट टू ट्रेड? ओनली ब्रिटिश। तो ब्रिटिश फिक्स द रेट ऑफ द गुड्स। अब वीवर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें फिक्स प्राइस को ब्रिटिश फिक्स करते थे। दे हैव टू सेल देयर रॉ कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स एट द फिक्स रेट, बिकॉज ब्रिटिश गेव एडवांस मनी टू द वीवर्स। एडवांस मनी देते थे, उसके लिए उन्होंने रखे हुए थे गुमास्ता। कौन रखते थे? गुमास्ता। गुमास्ता कौन होते थे? प्रीपेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने पहले से पे करके रखी है, एडवांस में नहीं पेमेंट देती थी। प्रीपेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गुमास्तास को ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एडवांस मनी देते थे। दैट एडवांस मनी गुमास्तास गोज टू वीवर्स, force them to sell their clothes at fixed rate to गुमास्तास, because गुमास्ता जो एडवांस मनी देगा उसे क्लोथ बेचना पड़ेगा ना। एंड रेट वाज फिक्स्ड बाय गुमास्तास, फिक्स होता था, लोअर रेट होते थे। वीवर्स हैड टू सेल देयर क्लोथ ओनली टू गुमास्तास, फिक्स रेट, कोई बार्गेनिंग नहीं। एंड साथ में फिक्स टाइम, कई बार डिले भी हो जाता था। वीवर्स वर नॉट अलाउड टू डिले इन देयर वर्क, वो डिले भी नहीं कर सकते थे। अगर डिले होता तो गुमास्तास gave them strict punishment. Sometimes गुमास्तास visited the villages with the help of police also. अपने साथ पुलिस लेके चलते थे विलेजेस में। अगर वीवर्स डिले करते थे तो गुमास्तास gave them strict punishment। अब वीवर्स बेचारे इतने तलब चुके थे, they left their villages, अपने घर बार छोड़ने पड़े, and went to the places where their some relatives lived, and from that places they protested against गुमास्तास। वहां से जाके इन्होंने गुमास्तास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो वीवर्स के साथ, ठीक है। अब इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स बिकॉज ब्रिटिश अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। उन्हें लगा कि इंडिया जो है ना वो एक मार्केट बेस्ड, उनको लगा कि ग्रेट मार्केट है। इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स बहुत बिकती थी बिकॉज ब्रिटिश गुड्स वर मिल मेड, industrial made and cheap,
Indian cloth was expensive, whereas British cloth was cheap. इंडिया के लोग, अब देखो, ब्रिटिश जो ब्रिटेन के लोग थे वो इंडियन क्लोथ प्रेफर करते थे, वो अपनी कंट्री का क्लोथ प्रेफर नहीं करते थे। whereas in India people preferred मिल मेड क्लोथ, उल्टा, वो अपनी कंट्री के व्यूवर्स का क्लोथ प्रेफर नहीं करते थे। रीजन, बिकॉज अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर, they could not afford the handmade clothes that was made by Indian weavers, that was expensive. They preferred mill-made clothes. Indian किसको prefer करते थे? Mill-made, because India was colony, so poor थे Indians under British, and they preferred mill-made clothes. तो ब्रिटिश को लगा कि इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, उनको उनकी गुड्स बहुत बिक रही हैं इंडिया में, बिकॉज ब्रिटिश गुड्स वर चीप। So Indian markets in those days were flooded with British goods. India की markets किससे भरी हुई थी? British goods. There was great demand of British goods. And on the other hand, in India there was East India Company. East India Company pressurized Indian people to buy British goods, not Indian goods. So Indian markets were flooded with British goods. In this way, अब अपने आप सोचो, British forced farmers, weavers to give finer variety of raw cotton to British. अब अपने आप सोचो, finer variety of raw cotton सारी किधर जा रही थी? British. तो हमारे तो weavers के पास raw material ही नहीं बचा, because सारी cotton किधर जा रही थी? और जितनी finer variety की cotton थी, that was carried to Britain. So our weavers suffered lots of problems. They had to face lots of problems. There was shortage of raw material. Weavers के पास तो raw material ही नहीं था, तो वो clothes कहाँ से बनाते? On the other hand, they had to pay custom duties. फिर उन्हीं के clothes की डिमांड इंडियन मार्केट में ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं? ब्रिटिश क्लोथ को। तो weavers lost their local markets. इनकी local markets चली गई। They also lost their international markets. इनकी international markets भी गई, because now British government put restrictions on the import of Indian cotton textiles. Our weavers had to pay custom duties when they carried their clothes to Britain. अब अगर custom duty pay करनी है तो weavers को तो loss होना है, so that's why they stopped carrying their clothes to Britain. अब वो clothes नहीं लेके जाते थे, उन्हें loss होता था। So in this way they lost their international markets also. International market भी चली गई. They lost their local markets, they lost their international market. Raw material में देखो कितनी प्रॉब्लम है, सर पे क्यों आके बैठ गए वो मास्टर, जो कितने स्ट्रिक्ट थे, ना तो ये डिले कर पाते थे और ना ही बार्गेनिंग। तो वीवर्स के बारे में सोचो अब कैसी कंडीशन हुई होगी व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया। तो इन दिस चैप्टर यू विल, अभी तो मैंने एक सिंपल सी स्टोरी बताई है, ठीक है। अब ब्रिटिश बंगाल, जब ब्रिटिश, यू नो इट वेरी वेल कि ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट, पता है ना। तो ये मैं बात कर रही हूँ बिफोर, जब ब्रिटिश के पास अभी बंगाल नहीं था तब की। तो इंडिया, मैंने पहले ही बोला, इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड मार्केट। पूरे वर्ल्ड में इंडिया वाज फेमस, किस बात को लेके फेमस था? फॉर इट्स फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल को लेके इंडिया वाज फेमस इन द होल वर्ल्ड। अब एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। व्हाई ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड? सिंपल क्वेश्चन, मैंने अभी बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट केम इन Britain. First industry to be set up in Britain was cotton textile, and it was followed by iron and steel industry. So, due to these reasons, Britain came to be known as the workshop of the world. Britain को क्या बोला गया? Workshop of the world, because industrialization first came in Britain. First industry to be set up in Britain was cotton textile. Learn it. And number two, iron and steel industry. Cotton, raw cotton के लिए ब्रिटेन was totally dependent upon India.
इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। रॉ कॉटन किधर से जाती थी? सारी इंडिया से। और ब्रिटेन में ब्रिटेन के क्लोथ की डिमांड, क्या वहां के लोग ब्रिटिश क्लोथ को, वहां की इंडस्ट्री के क्लोथ को प्रेफर करते थे? नहीं, क्योंकि वो मिलमेड था, दैट वाज सेम डिजाइनिंग थी उसकी। दे प्रेफर्ड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल because of finer variety, because of better finishing touch, because of different designing, क्योंकि वो हैंडमेड था। That's why they preferred Indian cotton textile। तो ये सारा भी आपको पता चला कैसे कैसे पहले तो weavers earlier weavers led a happy life before the coming of the British। weavers led happy life, बार्गेनिंग भी करते थे, सब कुछ टाइम का अच्छा फर्क चल रहा। जैसे ही ब्रिटिश आते हैं वीवर्स की लाइफ क्या हुई? मिजरेबल। सबसे पहले तो काम कौन सा काम किया? बार्गेनिंग। देन मार्केट से चलिए, विच मार्केट? लोकल मार्केट्स तो गई, साथ में विच मार्केट? इंटरनेशनल। बिकॉज नाउ वीवर्स हैड टू पे कस्टम ड्यूटी, तो वो इतनी उनके पास थे ही नहीं पैसे कि वो कस्टम ड्यूटी भी करे और फिर क्लोथ लेके जाए। उन्होंने प्रेफर ही नहीं किया फिर लेके जाना। दैट्स व्हाई दे लॉस्ट देयर इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। तो जब बंगाल से पहले की अब मैं बात करूं, इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब अभी ब्रिटिश नहीं आए तब की बात हम कर रहे हैं। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस किस किस के साथ थे? साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, बट अब इंडिया में आ गए यूरोपियन पावर्स। Earlier, before coming of European powers, India had trade relations with Southeast Asia, Western Asia, मतलब एशिया में ही मैं बात कर रही हूँ, एशिया में ही जाता था क्लोथ। साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। अभी यूरोपियंस नहीं आए, फिर कौन आ गए? यूरोपियंस। कितनी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई? 4। पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच came to India later. British also came to India. अब फर्स्ट ट्रेडर्स जो आए पोर्चुगीज, ये पहले जब ट्रेड होता था ना, अरब ट्रेडर्स पंजाब से गुड्स लेके जाते थे। अरब ट्रेडर्स कैरिड गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ऐसे दूसरी जगहों के, पर्शिया, अफगानिस्तान, इन जगहों पे इंडियन गुड्स जाती थी। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड? यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे ना, encountered finer variety of cotton cloth carried by Arab merchants in Mosul। अब जगह का नाम है मोसुल, in present day इराक। प्रेजेंट डे इराक में मोसुल जगह का नाम है, वहां जाता था इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। प्रेजेंट डे इराक, प्रेजेंट डे इराक। ठीक है, अब इसी से नाम पढ़ना है क्लोथ का। ये जो क्लोथ गया इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को, इसका नाम बन गया मुस्लिम। क्या नाम बन गया? मुस्लिम। मोसुल से क्या बन गया? मुस्लिम। ऐसे ही नाम बना मुस्लिम। क्लोथ कैरीड बाय अरब ट्रेडर्स टू मोसुल, मोसुल प्रेजेंट डे इराक। बाद में वही मोसुल को क्या कहा गया? मुस्लिम, मुस्लिम कहा गया। अब पोर्चुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया। पोर्चुगीज क्यों आए? फॉर स्पाइसेस। यू नो इट वेरी वेल, केरला वाली स्टेट स्पाइसेस के लिए जानी जाती है ना, स्पाइसेस पता ना? यस, केरला जो है वो स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया आए फॉर स्पाइसेस। अब ये केरला की साइड है। ठीक है, केरला साउथ वेस्ट आप कह सकते हो, साउथ वेस्ट इंडिया केरला। कालीकट में सबसे पहले वो आए। केरला में कहाँ पे आए? कालीकट। कालीकट में सबसे पहले पोर्चुगीज ट्रेडर्स आए केरला में, साउथ वेस्ट इंडिया की साइड। अब दे केम फॉर स्पाइसेस। किसके लिए आए थे? स्पाइसेस, स्पाइसेस लेने आए। बट जाते हुए साथ में क्या ले गए? क्लोथ, इंडियन कॉटन
साथ में क्या ले गए, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, तो उसका नाम पड़ गया, अब एक मिनट, कहाँ से लेके गए, कहाँ सबसे पहले कहाँ लैंड किया उन्होंने, कालीकट, कालीकट कहाँ पे, केरला। तो अब जो क्लोथ वो लेके गए कैलिकट से, उसका नाम पड़ गया कैलिको, कैलिको, तो ये कैलिकट से गया था, तो उसका नाम क्या पड़ गया, कैलिको। तो मॉसल से क्या उसका नाम क्या पड़ा, मुस्लिम। तो मॉसल, मॉसल कौन लेके गए थे, अरब ट्रेडर्स, ब्रिटिश यूरोपियन ट्रेडर्स ने फिर अपना किया। मॉसल जगह का नाम है, कहाँ पे, इराक। अब उसका नाम मॉसल से क्या बन गया, मुस्लिम। अरब ट्रेड, फिर अब कौन आए, यूरोपियन, पोर्टुगीज, पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू, कहाँ पे आए पोर्टुगीज, केरला वाली साइड, कैलिकट। क्यों आए, फॉर स्पाइसेस, फॉर स्पाइसेस, while carrying spices they carried with them Indian cotton textiles। अब जो लेके गए, क्योंकि वो कैलिकट से लेके गए, कहाँ से लेके गए, कैलिकट, केरला, कैलिकट से लेके गए, तो उसका नाम क्या पड़ गया, कैलिको। अब ये याद रहेगा। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट हमने नेम पढ़ने हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ के बाद में बनते चले गए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, तो उसको कहा गया कैलिको। So there are so many other words which point to popularity of Indian textile in the Western markets। बहुत से वर्ड है जो यूज किए गए हैं इंडियन कॉटन, इंडियन टेक्सटाइल के लिए यूरोपियन मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, ठीक है। जैसे ये दो नाम, मॉसल, मॉसल, मॉसल से क्या बना, मुस्लिम, कैलिकट से क्या बना, कैलिको। तो मैंने स्टोरी नाम बोल दिया, मुस्लिम एंड कैलिको। मुस्लिम एंड कैलिको की अगर बात करें तो आपको यह पता चल जाएगा इंडियन कॉटन टेक्स को रेफर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। मुस्लिम कहाँ से गया, मॉसल, मॉसल प्रेजेंट डे इराक। अगर मैं कैलिकट, कैलिको बोलूं तो कैलिकट, कैलिकट किधर, केरला। और कौन लेके गए, पोर्चुगीज ट्रेड, पोर्चुगीज फर्स्ट यूरोपियन पावर, पोर्चुगीज कैरिड कैलिको, ठीक है। कैलिको कैलिकट से लेके गए, तो इसलिए उसका नाम बन गया कैलिको। और भी वो कहते हैं, बहुत से नाम है इंडियन टेक्सटाइल के इन यूरोपियन मार्केट्स। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को डिफरेंट डिफरेंट नेम से वेस्टर्न मार्केट्स में जाना जाता था। अब वो उन्होंने सारे नाम बताए हुए हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नाम लिए हुए हैं चिंट्स, खासा, बंदना, ठीक है, ये सारे नाम। अब चिंट्स, टर्म चिंट्स कम फ्रॉम, कहाँ से कहते हैं टर्म चिंट्स कहाँ से आई, इंग्लिश टर्म चिंट come from, it is derived from the word chint, a cloth with small and colorful flory designs। आपने अपनी मम्मा के पास चिकन का सूट देखा है, फ्लावर बने होते हैं उसमें, छोटे छोटे से होल से बने होते हैं, देखा चिकन, पूछना मम्मा के पास होंगे, आपके मम्मा के पास दुपट्टा हो सकता है, सूट हो सकता है, चिकन का देखना, वही उसी की बात कर रहे हैं, फ्लोरी डिजाइन होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो चिंट, उसी को ही चिंट। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम की बात कर रही हूँ, जैसे हमने किया मुस्लिम, फिर कैलिको, अब मैंने क्या बोला नेक्स्ट, चिंट। चिंट वर्ड कहाँ से लिया गया, वो कहते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिंट, a cloth with small and colorful flory designs, flory designs बने हुए हैं उसके चिंट से। अब नेक्स्ट इज, इन्होंने और नाम दिए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा बंदना। अब बंदना है क्या, ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ, गर्ल्स के पास होता है जैसे स्कार्फ नहीं होता, कलरफुल ब्राइट कलर का एक स्कार्फ, ब्राइटली कलर्ड स्कार्फ, ठीक है। नेक, या फिर आप कई बार हेड पे भी उससे बांध दो, आपका स्कूल का ही स्कार्फ ले लो, वो तो चलो पीच कलर का है, आपके पास वैसे भी तो ब्राइट कलर के होंगे गर्ल्स के पास, तो वो उसी की बात कर रहे हैं, बंदना, ठीक है। अब बंदना है क्या, ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। अब ये कितने नाम मैंने बोले अभी तक, 4। फर्स्ट इज मॉसल से मुस्लिम, देन सेकंड कैलिकट से कैलिको, देन वर्ड चिंट,
टेंट से लिया गया, फ्लोरी डिजाइन है उसके ऊपर, आपके घर में पक्का होगा देखना चाहिए। देन नेक्स्ट बंदना, बंदना स्कार्फ, बंधन में बांध लेना, किसी बांध लेना ऐसे, तो वो बंदना। कलरफुल स्कार्फ, जो नेक या फिर आप कह सकते हो हेड पे भी कई बार पहना जाता है ना, तो उसकी बात करते हैं। ओरिजिनली द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड बंधना, हिंदी और टाइंग, टाइंग बांधने के लिए, मैंने पहले ही बोला बांधना, किसी चीज को बांधना, पता है ना, तो बंधना उससे बना, किसी चीज को बांध लेना, स्कार्फ को जैसे बांध लेते हैं। अब बंधना मीन्स हिंदी वर्ड से लिया गया टाइम। अब जब स्कार्फ बांधते हो तो वो बांधते हो ना, ऐसे टाई करते हो ना उसको, सेम उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, अभी हमने 4 नेम लर्न करने आज आपने, मौसुल से मुस्लिन, कैलिकट से कैलिको, फ्लोरी डिजाइन, बंधना एक आप हिंदी में कह सकते हो टाइम, बांधना किसी चीज को, स्कार्फ नेक पे या सिर पे पहनना, ठीक है। आज अभी आज आप इतने वर्ड लर्न करोगे, फिर और भी हम इनके नाम लर्न करेंगे, जो जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में इनके और क्लोथ जो बिकते थे।